So good morning everyone. Welcome to Nutrition Gyan Prabha. So in today's class, it will be kind of a discussion as well as a content specific class. So with time you are definitely going to know which topics along with the MCQs we are going to solve. So this topic we have taken from the UGC NET Home Science syllabus from the Unit 1 portion, right? And this is a course specific class. So as you know, this is a demo class. So whatever from the course, like what exactly in a proper way we provide the notes along with the live sessions are happening right now. So the same things right now we will be approaching and confronting to you. So whatever the question, this is a definitely a class where you can also ask if there is any query you are developing in your mind during the class. Definitely let us know, right? Through the message or through the audio or by putting on the audio also, or you can definitely ask us if there is any query. So as you can see that right now also the post as we are running the post. So if you are willing to join already the individual batch, full length batch already we have started. And if still who are right now also thinking that you are also wanted to be the part of our platform and also you are very much serious regarding your preparation for UGC NET Home Science, then definitely you can join us. So here is the number right now in front of you in the screen, the last line. So who are interested, definitely you can directly call or message us on this number. We are definitely going to guide you that how exactly you can enroll yourself, right? So in today's class, I think this is very much visible to you. So in today's class, in the first slide only, we can see that there is a picture of what? In the right left hand side, there is a picture of endosperm, and specifically it is a picture of a paddy, right? Paddy means paddy. If you can see it by the outer side only, you will be seeing the very much harsh covering only. But who are right now also for the WBSLST preparation or WB set is coming in the December only. So for each and every examination, also UGC NET, this individual topic is very much important, right? So as we can see, there are some layers. The first layer is you have to see that there is a outer portion. Then there is a layer which is known as lemma. And then there are three layers which comes under bran layer. So this is important. So you just can also ask that how many layers are there. So first is bran. Then here is a specific in embryo. So this is not a layer. This is a, you can see that there is a individual aspect, a kind of a spore-like structure, right? Right? তো যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই স্পোর লাইক স্ট্রাকচারটার মধ্যে coordinator please coordinate them who are willing to join, some are unable to join this coordinator. So embryo মধ্যে কি থাকে, for right now some of you yes, 5 people are there in the course class and in the free class. So every one of you are Bengali. So I am right now continuing in Bangla. But if some of as non-Bengalis are going to join, so then from then only I also will be utilizing Hindi too. তো ভাষা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না, ইংরেজি তো আছে, তাই? তো এমব্রায়োর মধ্যে এই যে এমব্রায়োটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা মেইনলি স্টোর থাকে. So this is for your future purpose. So this embryo is kind of a structure which we can see, and within this some nutrients are stored. For what purpose? For a purpose of which we can say that for a future purpose, and this is related to the growth of the individual uh, total pork, mainly the paddy only. So near about some of the amount like carbohydrate, protein, fat, each and everything are there within the embryo. Right?
So that individual percentage are sometimes asked in your WB set examination, but not in NET. So as you know that we are running courses from last 3 or 4 years, and definitely in this individual batch also for English in it, specifically I am telling the set. So WB set to definitely. So for both of these examinations, people are qualifying randomly and with very good marks, and definitely with a proper preparation that is basically happening here. So we do know that what kind of questions are going to be asked. So as you can see, there are individual structure explanations. So that is you need to remember. So if we are telling about whole grain, means the outer layer will be there. Outer layer টাও সেখানে থাকবে. If we are telling the refined grains, mean there will be definitely the outer layer will be accent, right? So for whole grain, first of all, bran, the extreme outer layer is bran. So here fiber filled outer layer with B vitamins. So for B vitamins, if UGC asks that what exactly the nutrients which are rich in within the like bran layer, then you have to remember that this is B vitamins, right? Next is endosperm. For endosperm, this is starchy carbohydrate layer with some protein and vitamins. So endosperm is this individual layer here only. So the nutrients which are present are mainly starchy carbohydrate and some of the proteins and vitamins too. Next is germ layer. Germ layers are also known as embryo. So for germ layer, nutrient-packed core with B vitamins, vitamin E, phytochemicals, and healthy fats. So these things will be very much commonly present in within the germ layer. So next is your difference between white bread, white grain. White bread and whole grain. So this individual difference is very much important to remember. सी अगर आप होल ग्रेन पकड़ लो तो होल ग्रेन का मतलब यही होता है जिसमें आपने कोई रिफाइनिंग नहीं किया है। मतलब उसका जो भी हो जाए, आप उसको पैटी से बना लो, मतलब आपका जो व्हीट हो गया और पैडी हो गया, जो भी, मतलब पैडी से तो आपका राइस बनेगा। तो अगर उससे भी आप बना लो, उसमें भी आउटर लेयर मतलब पॉलिशिंग राइस अगर पॉलिश्ड हुआ, दैट मीन्स द ब्रांड लेयर विल बी डिमिनिश्ड और रिड्यूस्ड। ऑन द अदर हैंड साइड अगर होल ग्रेन हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गया, तो उसमें भी फाइबर का मतलब फाइबर जो होता है उसका जो अमाउंट वो ज्यादा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप पकड़ लो कि आपने पॉलिश किया है, मतलब रिफाइन किया है, मतलब आपको अगर आपने आटा ले लिया तो मतलब उसमें फाइबर का अमाउंट ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपने मैदा ले लिया तो उसमें डेफिनेटली आपका जो फाइबर का अमाउंट होगा ना, वो कम होगा। तो इससे आप अलग से याद रख पाओगे। सो अगर आपने होल ग्रेन पकड़ लिया तो इसमें आप देखो फाइबर 1.9 ग्राम। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपने व्हाइट ब्रेड पकड़ लिया उसमें फाइबर ओनली 0.8 ग्राम, राइट? तो दिस थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपने मैदा पकड़ लिया, इसमें कोई भी आयरन ऐसा होता ही नहीं, इसमें विटामिन भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने आटा पकड़ लिया, इसमें आपको आयरन मिलेगा, बी विटामिन मिलेगा, जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होगा। मैदे में कैलोरी ज्यादा होगा, फैट भी ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होगा, लेकिन वो गुड कार्बोहाइड्रेट, मतलब गुड गुड मीन्स व्हाट, जिसमें थोड़ा बहुत फाइबर भी हो। तो अगर फाइबर नहीं है तो आप उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग मैदे को जितना हो सके उतना कम प्रोवाइड करते हैं इन अ नॉर्मल बैलेंस डाइट ऑल्सो, राइट? सो ये आपको याद रखना जरूरी होगा। ये जब नोट्स आपको मिलेगा तब आप ये चीज भी थोड़ा डिफरेंस के थ्रू देख लोगे कि अगर जो भी मैंने बोला है सेम ही चीज है। अगर होल व्हीट हो गया तो डेफिनेटली उसमें फैट अगर होगा भी, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, मतलब फाइबर अच्छे से होगा, अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। और थोड़ा बहुत ये चीजें भी आप देख लो, सम में कंटेन पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, एंड ऑन द अदर हैंड होल ग्रेन अगर हो गया तो उसमें क्या होगा, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रहेगा, बी विटामिन रहेगा, आयरन रहेगा। तो सी जब भी आप कोई भी चीज को रिफाइन नहीं करोगे,
रिफाइंड अगर राइस हो गया, रिफाइंड आप कर रहे हो, उससे क्या बन जाएगा, का मैदा बन जाएगा। मतलब आप पॉलिश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, फाइबर को कट डाउन कर रहे हो। तो वो डेफिनेटली प्राइमरी चीज तो यही आपको याद रखना पड़ेगा कि फाइबर का मतलब रिड्यूस हो जा रहा है। ऑन द अदर हैंड साइड, इसके ही साथ अगर फाइबर, जैसे हमने इधर भी देखा, इस स्ट्रक्चर में भी ब्रांड लेयर अगर नहीं होगा, ये आप देखोगे, अगर ब्रांड लेयर नहीं होगा तो फाइबर एंड बी विटामिन दोनों ही कम हो जाएगा। तो एज इट इज द सेम थिंग ओनली, अगर ब्रांड लेयर मतलब फाइबर का जो लेयर है वो नहीं रहेगा, रिफाइनिंग ज्यादा होगा, तो आप जरूर डेफिनेटली उसमें विटामिन मिनरल्स को एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो बहुत ही कम होता है, राइट। तो ये चीजें आप याद रखोगे। ऑन द अदर हैंड साइड, वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट, आपने सुना ही होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए भी थोड़ा बहुत चीजें ये इधर आपने तो अगर समझ लिया तो याद रखने में इजी होगा। दैट इज, अगर आपका जो भी रिफाइन हो गया, पॉलिश्ड हो गया, आप ले रहे हो, तो उसका जो ग्लूकोज स्पाइक वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ जो फाइबर होना चाहिए था वो कम है। तो इसीलिए ग्लूकोज स्पाइक बहुत ही स्पीड में अप हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर होल ग्रेन का हुआ तो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ग्लूकोज स्पाइक उतना ज्यादा नहीं होगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ग्लूकोज स्पाइक उतना ज्यादा नहीं होगा, एंड इसीलिए डायबिटिक, जो भी इंडिविजुअल डायबिटिक होगा, उन लोगों के लिए ये जो चीजें हैं, मतलब रिफाइंड, नॉट नॉट रिफाइंड, रैदर होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन राइस, तो ये जो चीजें हैं, ब्राउन राइस, ब्राउन का मतलब क्या है, ब्राउन का मतलब उसमें फाइबर ज्यादा है, नथिंग लेस, उसमें कोई कलर मिलाया नहीं जाता। उसका मतलब यही होगा कि उसमें रिफाइंड जो प्रोसेस होता है वो नहीं किया गया होगा, और अगर किया भी होगा तो कम होगा। तो ये इसीलिए अगर आप कलर भी देखो, देखो ये होल ग्रेन का बना हुआ है, ब्राउन ब्राउन है। ये अगर देखो इसमें क्या है, व्हाइट ब्रेड है, मैदे के मतलब इसमें रिफाइनिंग ज्यादा हुआ है, इसलिए इसका जो कलर है वो भी व्हाइट है। तो अगर आपको ब्रेड भी खाना होगा तो होल ग्रेन ब्रेड खाओ, जिसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है, राइट। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, एज वेल एज आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट, सो जो भी चीजें फॉर एग्जाम्पल आपने, ओके, सो यस, जो भी चीजें आपने फॉर एग्जाम्पल पैडी ले लिया, इच सीरियस, इट कुड बी एनीथिंग, राइस ले लिया, अगर राइस होगा तो राइस, अगर आपने आटा ले लिया तो इन केस ऑफ डेफिनेटली आपका जो व्हीट हो गया तो उससे बनता है आटा। तो जो भी ले रहे हो, इन केस ऑफ पार्बोलिन, राइस के लिए स्पेसिफिकली ये प्रोसेसिंग होता है राइस, राइट। तो ये याद रख लेना, स्टेट में बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और भी टॉपिक्स राइट नाउ जो भी हम आज जानेंगे वो नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पारबॉइलिंग आपने देखा होगा, अगर आप कभी कभी भी गांव में गए होंगे तो आपने डेफिनेटली अगर राइस का पारबॉइलिंग सामने से देखा होगा, तो ये जो स्टेप्स मैं राइट नाउ डिस्कशन करूंगी आप लोगों के साथ, वही चीजें आपने कन्वन मतलब देखा भी होगा, राइट। तो conventional means common, right? This is not like a very technical process, rather a very common process, जो farmers है वो लोग खुद ही अपने घर पे ही जब पार बॉइलिंग करते हैं तो ऐसे ही किया जाता है। तो अगर आप पकड़ लो कि टोटल साउथ एशिया में ये प्रोसेस वेरी मच लाइक कॉमन, तो आपने सही पकड़ा होगा। तो राइट, फॉर एग्जांपल अबाउट फिट ऑफ ऑल राइस इज पार बॉइल्ड बिफोर मिलिंग। तो ये मिलिंग के पहले पार बॉइलिंग किया जाता है। बट अब क्यों किया जाता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन ये पार बॉइलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना होगा कि ये पार बॉइलिंग राइस के लिए यूजुअली किया जाता है, ठीक है। एंड ब्राउन राइस मतलब आप, ये बहुत ही अच्छा एक चीज है जिसमें आप कोई ऐसा ऐसा आपका हाथ निकल जाता है श्योरली, लेकिन जो फाइबर का पोर्शन है वो नहीं निकलता। तो इसीलिए पार्बोनिंग एक डेफिनेटली अ गुड प्रोसेस, लाइक इफ यू कैन कंसिडर। तो इसमें एडवांटेज भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आया था कि स्टेप्स क्या क्या होता है, तो वो याद रख लेना।
फर्स्ट इज सोकिंग। राइस को आप सोक करोगे, मतलब वाटर में उसको पोर करोगे। जो पानी होगा पानी के टैंकर में उसको, मतलब डेफिनेटली उसके नीचे आग भी दिया जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत तो बॉईल करना होता है, पर पार बॉइलिंग बोला गया है, ठीक है ना। मतलब पार्शियल बॉइलिंग, पार बॉइलिंग का मतलब ये है पार्शियल बॉइलिंग। ऐसे आप उसको माइंड में रखना, ठीक है, तो इजी हो। नेक्स्ट स्टीमिंग। तो स्टीम तो आपने कुकिंग का चैप्टर में ऑलरेडी, जो भी आप कोर्सेज से हो तो वो लोग तो आप जानते ही हो, तो ये आपको पढ़ाया गया होगा अगर आप क्लास में लाइव सेशन में रहे होगे। तो स्टीमिंग क्या है? तो ये जो टेम्परेचर है वो 100 तक नहीं जाता, 100 से नीचे रहता है, लाइक 80 to 88 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा स्टीमिंग का जो टेम्परेचर होगा। तो पहले तो आपने राइस ले लिया, उसको पानी में आपने भिगोया, देन आप क्या करोगे? स्टीमिंग करोगे, नॉट बॉइलिंग, स्टीमिंग। पार बॉइलिंग बोला गया है लेकिन बॉइलिंग नहीं बोला गया है। बॉइलिंग अगर होता तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता। तो उसके नीचे जो स्पेसिफिकली उसके नीचे ही जो इमीडिएट टेम्परेचर यूटिलाइज होता है वो स्टीमिंग में आता है, दैट इज योर 80 to 88 डिग्री सेल्सियस अराउंड ओनली, राइट। तो वो स्टीमिंग में आएगा। देन जब आप स्टीम आपने कर लिया तो आप क्या करोगे? वो राइस को आप सुखाने के लिए रख दोगे। आपने ये चीजें डेफिनेटली, अगर फ्रॉम विलेज यू आर, if you are from a city also, you can write it down, like you can check it on the YouTube also, like parboiling का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो अगर आप एक बार देख लोगे तो भी आप इजीली याद रख लोगे। तो ये जो तीन चीजें हैं, जो स्टेप है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, राइट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, ओके। सो द चांसेस ऑकरिंग इन द parboiling प्रोसेस आर एज फॉलोज। तो क्या क्या चेंजेस? दिस इज नॉट चांसेस, दिस इज चेंजेस। व्हाट चेंजेस आर बेसिकली ऑकरिंग? अगर आप parboiling कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस आ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। So first of all, you definitely know there are many more various water soluble vitamins which are present within your rice, right? Which are present in the cereals. तो उसको भी, उसमें भी क्या चेंजेस आता है वो हम देख लेते हैं। तो vitamins and mineral salts are spread throughout the grain, the riboflavin. This is important. Very carefully consider these points. These are very much important. So जब आप क्या कर रहे हो, जब आप पारबॉइलिंग कर रहे हो तो उसमें जो विटामिन एंड मिनरल्स होगा वो स्प्रेड आउट होगा थ्रू आउट द ग्रेन। मतलब अच्छा हुआ, क्यों अच्छा हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जब राइस कच्चा था तो उसमें जो भी विटामिन मिनरल था वो टोटल सीरियल में, मतलब थ्रू आउट सीरियल और ग्रेन में फैला हुआ नहीं था, स्प्रेड नहीं था। तो क्या हुआ जब आपने क्या किया? पारबॉइलिंग किया, तो ये जो विटामिन, फॉर एग्जाम्पल राइबोफ्लाविन, अगर बी विटामिन आप पकड़ लो, B1 B2 B3, एंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, जो भी थोड़ा, जो भी जिसका अमाउंट जो भी होगा ना, तो वो टोटल प्रॉपर वे में स्प्रेड आउट हो जाए ट्रेन में, राइस में, राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी आ चुका है, जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये यूसी नेट में भी पूछा गया है, लाइक प्रीवियस ईयर में, थोड़ा बहुत पीछे में, मतलब पीछे, नॉट इन विद इन 5 years, उसके पहले पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, तब हम डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी, इन टुडेस क्लास आल्सो वी हैव सम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन द एंड। सो यस, द राइबोफ्लाविन thiamine कंटेंट्स आर 4 times हायर। तो 4 गुना बढ़ जाएगा जब आप पारबॉइलिंग करोगे। किसका अमाउंट? राइबोफ्लाविन एंड thiamine का amount. The thiamine is more evenly distributed in the parboiled rice, and the niacin level in this rice is 8 times. Do remember this, 8 times greater. See, there are many important aspects. From here, you have to remember. Thiamine and riboflavin double हो जाएगा. Then आप अगर, so not double, 4 times higher, sorry. And thiamine evenly distribute होगा. And then the most important, one of the most important point is niacin also got increased by 8 times. तो ये भी आपको डेफिनेटली याद रखना होगा, important है। Moisture content is reduced to 10 to 11% for better storage. तो सी, अगर पानी ज्यादा हुआ किसी भी ग्रेन में, फॉर एग्जाम्पल आप, अगर आप पोटेटो पकड़ लो, तो पोटेटो को, मतलब आलू, आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है। तो क्यों क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया गया होगा,
तो क्या होगा, उसका जो वाटर कंटेंट है उसमें ही वो विथ टाइम उसका मतलब स्पॉइलेज शुरू हो जाएगा। तो अगर आप राइस पकड़ लो, अगर राइस में वाटर कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा है तो उसको पारबॉइलिंग के थ्रू ही अगर हम रिड्यूस कर पाए, तब भी उसको हम चाहे तो उसका प्रॉपर बेटर स्टोरेज मतलब फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर पाओगे। तो ये एक क्या है, कन्वेंशनल वेरी कॉमन सा एक मेथड है जो फार्मर्स लोग भी यूटिलाइज करते हैं। अगर पारबॉइलिंग अच्छे से वो लोग कर पाए मतलब किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसका जो बेसिक सा एक यूज है वो ये ही है कि उसका जो वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाए, एंड उससे क्या होगा, स्टोरेज बेटर हो जाएगा, ज्यादा दिन तक स्टोर कर पाओगे आप। ठीक है। Starch grains embedded in a proteinaceous matrix are gelatinized and expanded until they fill up the surrounding air spaces. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो स्टार्च का जो अमाउंट है जो इसमें प्रॉपरली प्रेजेंट है वो भी क्या हो गया, जब आप पारबॉइलिंग करोगे उसमें थोड़ा बहुत जिलेटिनाइजेशन हो जाएगा, एंड वो भी अच्छे से फिल्ड अप हो जाएगा, एंड उसका जो अमाउंट है वो भी अच्छे से फैल जाएगा। तो यस, जिलेटिनाइजेशन क्या होता है वो मैं थोड़ा बहुत मतलब इसी क्लास में इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उससे पहले आप ये जान लो कि जब पारबॉइलिंग होगा तो थोड़ा बहुत जिलेटिनाइजेशन भी हो रहा है, एंड इससे क्या होगा, जो स्टार्च है वो भी अच्छे से उसमें एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब जो राइस है उसमें जो स्टार्च अमाउंट है वो भी अच्छे से प्रॉपरली फिलअप हो जाएगा। जो एयर स्पेस है वो एयर गैप नहीं रहेगा, वो स्टार्च से फिलअप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोटीन सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड एंड सिंक इनटू द कॉम्पैक्ट मास ऑफ जेल्टनाइज्ड स्टार्च बिकमिंग लेस लायबल फॉर टू एक्सट्रैक्शन। मतलब जो प्रोटीन सब्सटेंसेस उसमें है राइस में, वो भी प्रॉपरली जेल्टनाइजेशन के थ्रू ही एग्जैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट फेज में आ जाएगा, एंड डेफिनेटली उसका जो एक्सट्रैक्शन है जो यूटिलाइजेशन है वो भी इजी हो जाए। ठीक है। ओके, तो इसमें जो भी मैंने बोला वो अलग से आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के तौर में भी जानना होगा, क्योंकि यही चीजें समटाइम्स आता भी है। ठीक है। तो डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत एडवांटेज तो हमने जान ही लिया है। ठीक है। तो जो भी हमने अब तक जाना है वो एडवांटेज में ही आएगा। तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है, तो वो क्या होगा तो वो देख लेते हैं। तो यस, जब भी आप पारबॉइलिंग करोगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अनप्लीजेंट स्मेल मतलब एक एक स्मेल आता है, ओडर आता है जो उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। एंड लॉन्ग रन में थोड़ा बहुत कलर भी येलोइश हो जाता है, अगर आपने देखा होगा तो कलर चेंज होता है। एंड उसके लिए क्या होता है, अगर आप मार्केट में वो मतलब बिजनेस पर्पस अगर आप देखो तो वो मतलब देखने से कोई अच्छा दाम नहीं देता होगा। मतलब अगर देखो तो उसका जो कलर चेंज हुआ होगा वो शायद अगर आप फॉर एग्जांपल इन अ मार्केटिंग अप्रोच दिस इज नॉट प्रेफर्ड बाय द कस्टमर, सो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग सोकिंग माइकोटॉक्सिन में डेवलप इन द पारबॉइल्ड राइस। तो माइकोटॉक्सिन एक टॉक्सिन है, तो अगर आपने ज्यादा टाइम तक सोक किया होगा राइस को, ठीक है, वाटर में ज्यादा टाइम तक अगर सोक किया होगा ड्यूरिंग पारबॉइलिंग, तो ये जो माइकोटॉक्सिन है वो डेवलप होगा, जो अच्छा नहीं है। ठीक है। ये एक टॉक्सिन है। ठीक है। So next is heat treatment. Heat treatment during parboiling destroys some of the natural antioxidant. That's why parboiled rice can develop more rancidity. Rancidity ज्यादा होगा देन रॉ राइस ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो अगर आपने रॉ राइस रख दिया होगा तो उसमें क्या आपने पारबॉइल नहीं किया होगा तो उसमें जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है, थोड़ा बहुत विटामिन नहीं रिड्यूस होता, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मतलब पारबॉइलिंग इज वेरी मतलब स्टीमिंग ओनली नॉट बॉइलिंग। तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल है उसमें डेफिनेटली होगा भी, तो देखा जाता है कि वो डिस्ट्रॉय होता है इन केस ऑफ पाइप बॉइलिंग, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज डेफिनेटली। एंड रैंसिडिटी मतलब जो नेचुरल फैट है, फैटी एसिड है, वो क्या करता है जब आप बॉइलिंग करोगे तो वो रैंसिड मतलब एक अलग सा ओडर क्रिएट करता है। तो ये चीज भी मतलब अप्रोचेबल एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो दिस ऑल आर डिसएडवांटेज ऑफ पार्ट बॉइलिंग, राइट। तो ये चीज आप देखोगे, एंड ये जो विटामिन मिनरल वाला पॉइंट है वो हमने अभी जाना है, राइट, कि वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है एंड इंडोस्पर्म में सिप हो जाता है, मतलब स्प्रेड हो जाता है अच्छे से,
तो जो भी विटामिन मिनरल राइस में होगा, पार बॉइलिंग के बाद वो अच्छे से फैल जाएगा टोटल राइस में, एंड वो हम लोगों के लिए फॉर न्यूट्रिशनल अप्रोच, एंड दैट इज अ गुड एस्पेक्ट, दैट इज अ गुड पॉइंट, राइट। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन भी लॉस नहीं होता उतना ज्यादा पार बॉइलिंग में, तो वो भी अच्छा ही है। एंड डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाता है, मतलब अच्छे से डाइजेशन के लिए भी ये, मतलब थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट में स्टीमिंग ऑलरेडी हो रहा है ना, तो क्या होता है, इजी हो जाता है डाइजेशन करने में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। Okay, now we are going to the cereals cookery. So this is a very important aspect in case of UGC NET as well as सेट। सेट में अलग से अमाइलो पैकिंग से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है एंड पूछा जाता भी है, तो वो तो आप जरूर याद रखोगे। इसमें डिफरेंस आप जानोगे, मतलब उसके जो अमाइलोज है, अमाइलो पैकिंग है, उसके जो डिफरेंस होता है वो मैंने इधर आप लोग के लिए दिया हुआ है। लेकिन बिफोर दैट ये होता क्या है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, वो आपको जानना जरूरी है। तो दीज आर स्टार्च, सीरियल स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही स्टार्च आएगा, सो दैट दीज आर स्टार्च, मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ सीरियल्स। सो ये डेफिनेटली टू टाइप्स का होता है, पॉलीसैकेराइड है बेसिकली बाय नेचर। तो इसमें दोनों टाइप का पॉलीसैकेराइड, एक है अमाइलोज एंड एक है अमाइलोपेक्टिन। नाउ इसमें जो डिटेलिंग आपको लगेगा वो इधर से आपको मिल जाएगा कि अमाइलोज का नेचर क्या है एंड अमाइलोपेक्टिन का नेचर क्या है। तो अगर आप अमाइलोज पकड़ लो तो इसमें ब्रांच नहीं होगा, मतलब अल्फा 1,4 ब्रांच होता है एंड 1,6 ब्रांच होता है। जो ब्रांच होगा 1,6 वाला एंड 1,4 वाला, तो ये इधर होगा, ये पॉइंट आप देख लो, ठीक है। इसमें ओनली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, ठीक है। अमाइलोज कंटेंट इन स्टार्च इज अबाउट 20%, whereas अमाइलो एक्टिविटी में स्टार्च 80% होता है, ठीक है। तो ये तो स्टार्च का अमाउंट हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर, अगर अमाइलोज आप पकड़ लो तो, अगर अमाइलोज आप पकड़ लो तो डेफिनेटली अमाइलोज में क्या होता है, ओके, गिव मी 1 second, I'm just giving, okay, so yes, this point, amylose are less soluble in water, whereas amylose pectins are more soluble in water, right? This is important. This point is for biochemical aspect, this is also important. अगर आपको बोला जाए कि स्टार्च का जो बायोकेमिकल टेस्ट होता है, कैसे आप समझोगे कि ये स्टार्च है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अमाइलोज नहीं लिया, तो ये इसका जो आयोडीन सॉल्यूशन में अगर आप इसका एक ड्रॉप डालोगे तो देखा जाएगा कि कलरेशन में चेंज आएगा, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर फॉर्म होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर अमाइलोपेक्टिन हो गया तो इसमें रेडिश ब्राउन कलर आएगा जब आप इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे। तो मोटा मोटा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, वो मतलब है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के केस पे, तो वो सभी चीजें मैंने इधर दिया हुआ है, तो वो आप फिर से एक बार रीड आउट कर लेना। For example, the last point, in case of amylose, it does not form a gel when hot water is added. On the other hand side, amylopectin forms a gel when hot water is added. मतलब डेफिनेटली मतलब भी समझ आ ही रहा होगा आपको। तो अमाइलोपेक्टिन अच्छे से जेल फॉर्मेशन करता है, तो जिलेटिनाइजेशन के केस में भी जिसमें ज्यादा अमाइलोपेक्टिन होगा, मतलब जो भी ग्रेन आप ले रहे हो अगर उसमें अमाइलोपेक्टिन का कंटेंट ज्यादा होगा तो वो अच्छे से जेल फॉर्म करेगा, मतलब इजीली जेल फॉर्म कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड साइड अगर अमाइलोज ज्यादा होगा तो जेल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगा, मतलब डिले होगा, तो वो आप याद रख लेना, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है यूजीसी नेट में। तो जिलेटिनाइजेशन अगर आप देखो तो स्टार्च जिलेटिनाइजेशन, तो स्टार्च अभी तक हमने स्टार्च का जो टाइप है वो भी हमने देख लिया, एंड नाउ हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होता है।
So, first of all, do let me explain this to you that this is a topic which has been asked more than 3 or 4 times, I would say. So important तो डेफिनेटली है तो स्टार्च जिलेटिनाइजेशन स्टार्ट होगा जब आप एक प्रॉपर टेम्परेचर में उसको डालोगे एंड एज वी नो दैट अमाइलोज एंड अमाइनोपेक्टिन उसमें होना जरूरी होगा क्योंकि उसमें ही चेंजेस आएगा. ये श्रिया, हाँ डियर, ये जो चेंजेस आएगा वो मैं बता रही हूँ. अगर आप ये देखो स्टार्च ग्रैन्यूल में ये जो चीजें है ना, यस, तो अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा. तो जब आप वाटर में डालोगे तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स में भी डेफिनेटली एक प्रॉपर चेंजेस आएगा. हीट कर रहे हो आप एंड इसमें होगा क्या, ये तो रॉ रॉ स्टार्च है, ठीक है, देखो ये रॉ स्टार्च है. तो जब आपने हीट किया तो इसमें ये जो चेंजेस है जिलेटिन फॉर्मेशन, मतलब जेल जेल फॉर्मेशन, बेसिकली ऐसे भी आप याद रखें, नॉट जिलेटिन रैदर जेल फॉर्मेशन. तो ये जो जेल फॉर्मेशन होगा वो आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट होगा. तो ये आप याद रख लेना, ठीक है. सो नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेडेशन. ये जो टर्म्स है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑलरेडी आ चुका है बहुत बारी एंड डेफिनेटली इट कुड इवन आस्क इन द कमिंग एग्जामिनेशंस टू. तो वैसे ही याद रखना जैसे आपको मैंने बोला है, राइट नाउ बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है तो याद रखना होगा, ठीक है. स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन इज काइंड ऑफ अ मेकानिज्म जिसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने राइस को रख दिया होगा ओवरनाइट, ठीक है, कुक्ड राइस को. तो आपने देखा होगा कि वो फिर से क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, मतलब क्रम्बली हो जाता है. आपने फॉर एग्जांपल घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो. क्या करोगे, कुक्ड राइस को आप रख दोगे, मतलब नॉट इन विद इन द फ्रिज, आउटसाइड फ्रिज, और बेसिकली यू कैन जस्ट राइस को आप रख दो. देन अगर 12 घंटे 13 घंटे तक आप रख दोगे, आपने आप देखना कि वो फिर से क्या होगा, वो फिर से टाइट बन जाएगा. फिर से एक मतलब आप देखोगे तो लगेगा कि वो मतलब राइस नॉर्मल रॉ राइस ही है. ऐसा हुआ होगा ना. अगर आप ओवरनाइट मतलब उसको क्या मतलब बासी करके आप अगर आप रखोगे, पानी मत डालना, नॉर्मल एक बोल में आप राइस रख के देखना, वो क्या फिर से एक मतलब रॉ राइस ही बन जाता है. ये जो चेंजेस क्रिस्टलाइन मतलब रूट रूट मतलब वो उसका फर्मनेस आ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, क्रामली बन जाता है, ठीक है. उसमें नॉर्मल कुक्ड राइस वाला जो मॉइस्चर, जो मतलब कुक्ड राइस में क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है. अगर आप चाहो तो किसी भी मतलब वेजिटेबल हो जाए, किसी भी चीज के साथ जब खाओगे तो आपको क्या होगा, वो आपको मतलब मतलब दांत से काटने में उतना ज्यादा मतलब मुश्किल ही नहीं होगा क्योंकि वो सॉफ्ट होगा, राइट. लेकिन अगर आप उसको रख दो ओवरनाइट, मतलब स्टेल्टिंग के लिए, मतलब बासी करो, तो वाटर मत डालना, क्योंकि अगर वाटर डालोगे तो अब तो अलग से ही वाटर रिटेन करके वो सॉफ्ट ही रहेगा. लेकिन आप अगर आप वाटर नहीं डालोगे, 1-2 दिन तक आप रख दोगे, 12 घंटा 13 घंटा तक, तो फिर से वो राइस बन जाएगा. मतलब क्या हो रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर वो फिर से अगर फुल अगर आप कर रहे हो तो सेम स्ट्रक्चर उसमें आ जाएगा. इज इट क्लियर in the class, course class and course student, and definitely the student who are joined us for the free demo session. Let me ask. Okay, Shantari is here also in the free class. Is it clear? मतलब क्या होगा जब आप रख दे रहे हो, वो फिर से ही राइस बन जाएगा. मतलब उसका जो फर्मनेस, रॉ राइस में जो फर्मनेस होता है वैसे ही वो बन जाएगा. मतलब आप चाहो तो फिर से उसको कुक कर सकते हैं. अगर चाहे आप घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. तो अगर आप बासी चावल रख दो ना,
तो वो फिर से क्या हो जाएगा, रूखा बन जाएगा, सख्त हो जाएगा। एंड वो अगर आप चाहे तो फिर से मतलब अगर आप उसको खाना भी चाहो तो उसको फिर से कुक करना पड़ेगा, ऐसा वो बन जाता है। तो इज इट क्लियर शौचारी? ओके, वेरी गुड। तो वो ये जो कंसेप्ट है, यूजीसी नेट हो गया, सेट हो गया, इसको ऐसे आप मतलब नोट्स और ऐसे इस सच उसमें जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसे ही दिया होगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। इसमें क्या 10 लाइन हो गया, 12 लाइन हो गया कि 50 लाइन हो गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो ही होता तो अब तो आपके खुद के पे ही पास बुक है, तो अगर वो पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट है वो, not only in 5 lines, rather less than 5 lines, in 2 lines और in one word आपको वो याद रखना होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, एंड कंसेप्ट प्रॉपरली बिल्डअप हम कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग प्रॉपरली क्वालिफाई भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए लाइव सेशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे जिलेटिनाइजेशन वर्सेस रेट्रोग्रेशन। तो इसमें तो आप जो भी मैंने समझाया होगा वो चीजें बहुत अच्छे से हमने दिया होगा, एंड वो आप एक बार सिर्फ देख लेना। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बोला है ना वो सेम चीज इधर बोला गया है। तो वो जब भी आपको नोट्स मिलेगा क्लास में तो वो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज, इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। नाउ ब्राउनिंग। तो लेट मी टेल यू, इन केस ऑफ यूजीसी नेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। सेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी राइट नाउ जो भी आप क्लास में हो, अगर एसएलएसटी भी दे रहे हो तो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हरियाणा पीएससी के फॉर्म भी आपने फिलअप किया है तो भी आपको, आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट मी explain it. Browning is the process of food turning brown due to the chemical reaction that takes place within the food only. तो क्या, अगर आप बहुत ही इजी भाषा में आप लोगों को मैं समझाऊं तो एक काम आप चाहे तो आज ही घर पे कर सकते हो। अगर आपके पास एक एप्पल है, कोई भी फ्रूट हो गया, तो आप उसको काट के थोड़ा खा के रख दो। आप एप्पल के लिए ये ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, तो एप्पल में भी आप ट्राई कर सकते हो। आप देखोगे उसका कलर ब्राउन हो रहा है, मतलब उसमें ब्राउनिंग हो रहा है। इसको बोला जाता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इसका मतलब तो आपने समझ लिया, लेकिन होता क्या है, क्यों हो रहा है, वो भी जानना जरूरी है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एक प्रॉपर बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो क्यों ब्राउन हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप काट के रख दे रहे हो, मतलब इसको आप एक्सपोज कर रहे हो एयर में। तो जब ये इंडिविजुअल एंजाइम जो एप्पल में है वो ऑक्सीजन के सामने एक्सपोज होगा ना, तब ये उसका जो कलर है, नॉर्मल कलर व्हाइट से वो ब्राउन हो रहा है। क्या ये ब्राउनिंग सिर्फ एप्पल में ही होगा? नहीं, नॉट इन ओनली एप्पल। ये सेम चीज जब शुगर में होगा उसको हम कैरामलाइजेशन बोलेंगे, शुगर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। फैट में भी होता है, उसको लिपिड ब्राउनिंग बोला जाता है, उसके लिए भी टेम्परेचर नीडेड है। तो अगर फ्रूट में अगर आप एप्पल पकड़ लो तो इसमें कोई टेम्परेचर नहीं लगता। अगर फ्रूट को आप काट के रख दो तो उसका ऐसे ही जब एक्सपोज होगा, उसमें जो एंजाइम है उसका नाम दो एक बार स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो उसका नाम भी आपको याद रखना होगा। तो दीज आर फेनोलेजेस, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फेनोलेजेस, राइट। अगर राइट डेफिनेटली जो कोर्सेस में भी जो लोग न्यू हो एंड जो फ्री क्लासेस में फर्स्ट टाइम आप न्यूट्रिशन ज्ञान प्रभा एंड माई क्लास डेफिनेटली यू आर टेकिंग, तो मैं पहले ही बोलती हूँ, आज शायद मैंने नहीं बोला, एक नोटबुक रखना
जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैंने बोला कि फिनोलिस, आपको याद रखना है ये चीजें ना स्पेसिफिक होता है। तो ये अगर आप एक बार लिख लो तो और भी अच्छे से आप याद रख पाओगे, रिमेम्बर कर पाओगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इसलिए जब भी क्लास में आओ एक नोटबुक साथ में रखना। तो ये फेनोलिसिस इसको स्पेसिफिकली याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है और उसका नाम क्या है और व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर दिस। तो दीज आर फेनोलिसिस। सो व्हेनेवर इट आर कमिंग एक्सपोज्ड बेसिकली टू इन फ्रंट ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब जो भी आप एक्सपोज कर रहे हो, काट के आप फ्रूट को रख दे रहे हो, तो उसमें जो एक प्रॉपर चेंजेस होगा, तो चेंजेस में क्या होगा, एक ब्राउन सा पिगमेंट बेसिकली जब ये एक्सपोज्ड होगा उसमें ब्राउन पिगमेंट मतलब मेलानिन जो हम लोगों का बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो मेलानिन फॉर्म होगा एंड उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन में। इसमें आप देखो ब्राउन होने, तो इसीलिए इसको ब्राउनिंग बोला जाता है। तो ब्राउनिंग तो हो गया, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ये भी बहुत बार, 2-3 से ज्यादा बार पूछा गया है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, तो इसको भी आप याद रख लेना। तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेलर रिएक्शन आएगा। तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। इस ये बेसिकली आप लोगों का मिल्क में होता है, ठीक है ना। मिल्क जब आप हीट अप कर रहे हो तो मिल्क में क्या होता है, मेलर रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड बेसिकली अमाइनो एसिड जो लाइसिन होता है उसके साथ रिड्यूसिंग शुगर, जब आप इसमें एक साथ दो चीज एड ऑन होता है एंड हीट भी प्रेजेंट होता है, तब ये कलर चेंजेस होता है, ब्राउन कलर्ड मेलानॉइड्स कंपाउंड्स आर बेसिकली फॉर्म। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूछा गया है ऑलरेडी, मतलब 3-4 बार से ज्यादा पूछा गया है, तो वो मैं अलग से नहीं बोल रही हूँ, तो इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। तो याद रखना जरूरी है। So non-enzymatic browning is found in food processing operation involving dehydration in condensed milk, तो condensed milk में होगा। Then आप definitely milk के related Maillard reaction is very common, milk में होता है, ये आप याद रख लेना। देन कैरामलाइजेशन जो शुगर में होता है वो भी एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, ठीक है ना। मतलब एंजाइम जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये भी इसमें क्या होगा, इसमें भी ब्राउन कलर फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए इसको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जा रहा है, ठीक है। तो कैरामलाइजेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, a process used extensively in cooking for the resulting nutty flavor। तो अगर आप कैरामलाइजेशन कभी देखा होगा आपने करते हुए, तो क्या होता है, उसमें शुगर को आप हीट अप करते हो एंड विथ टाइम वो कलर में ऑक्सीडेशन, जो शुगर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्सपोज होके ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें क्या होता है, उसका कलर व्हाइट से ब्राउन हो जाता है। तो इसीलिए इसको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें शुगर है एंड शुगर में ही ये रिएक्शन और चेंजेस आ रहा है, ठीक है। Dextrinization. So dry heat also brings changes to starch granules through a process known as dextrinization. So डेक्सट्रिनाइजेशन होता है आपका, ये भी एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ही है। ये किस में होगा, ये ब्रेड में होता है यूजुअली, ठीक है। एंड डेक्सट्रिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो स्मॉलर यूनिट्स में बेसिकली स्टार्च के अंदर ही होता है, एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ स्टार्च इज डेक्सट्रिन, जो ड्यूरिंग टोस्टिंग, अगर आप ब्रेड टोस्ट कर रहे हो तो उसी टाइम ये ब्रेक हो जाता है एंड ये डेक्सट्रिन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए नाम भी डेक्सट्रिनाइजेशन है। एंड कलर आप देख ही रहे हो, ब्राउन हो रहा है, तो इसीलिए इसको भी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में ये भी आता है, ठीक है।
तो enzymatic browning and non-enzymatic browning मैंने बोल ही दिया. This is very important. Dextrinization, caramelization, and your enzymatic browning. Non-enzymatic में dextrinization, caramelization and Maillard reaction. ये जो टॉपिक आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है ना, ये अपकमिंग नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ये ऑलरेडी 2 3 4 5 बार पूछा गया है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है वो. उसके लिए अलग से मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन सेट होने वाला है WB सेट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. Maillard reaction takes place in the following cooking. Be fast, everyone. ठीक है, right now 11 people are there. Please be fast. We have to wrap up the class also. Maillard reaction takes place in the following cooking: prolonged cooking of milk with sugar, prolonged cooking with milk with salt, prolonged cooking of milk with vegetables, और prolonged cooking of milk with cereals. तो क्या है? राइट नाउ आपने ऑलरेडी ये कंप्लीट किया है टॉपिक, तो आप ओके. कुछ लोग ए बोल रहे हो, कुछ लोग डी क्यों बोल रहे हो? हाँ, मेजोरिटी ने ए बोला है. ओके, तो देख लेते हैं. यस, डेफिनेटली मेलर्ड रिएक्शन मीन्स जब आप मिल्क के साथ शुगर को एड ऑन करके पकाओगे, तब जो कलर में चेंजेस आएगा वो है मेलर्ड रिएक्शन. ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. ग्लूटेन फ्री डाइट गिवन टू, ये आपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया होगा, इसीलिए प्रोबेबली ये क्वेश्चन दिया होगा. ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए. ओके ओके, Ria, do participate. Shanchari, you also participate. जो भी आपको लग रहा होगा वो आप डेफिनेटली ट्राई कर कीजिए. सभी लोग आंसर कीजिए. ओके, we have got everyone's answer. So the answer is option B, celiac disease. ग्लूटेन फ्री डाइट बोला गया है, तो ग्लूटेन में प्रॉब्लम क्या है और सीलियाक डिजीज क्या है, वो तो डिटेलिंग में आपने डेफिनेटली आपने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया होगा हम लोगों ने. लेकिन यस, ग्लूटेन फ्री डाइट सीलियाक डिजीज में दिया जाता है, एंड दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड previously in UGC NET and SET also. So yes, that was the last slide in our today's class. So yes, thank you everyone. And one more thing that आज जो भी टॉपिक आप लोगों ने डेफिनेटली कंप्लीट किया होगा हम लोगों ने, तो यस, ओके ओके, तो जो भी चीज आप लोग देख रहे हो ना, सो वो इम्पोर्टेंट है फॉर WB सेट, WB SLST एंड UGC NET. So thank you to everyone to watch it. If we are uploading this in YouTube also, or definitely we are uploading it for whom those who are unable to join. कुछ लोगों को प्रीवियस टाइम में बेसिकली इवनिंग में अगर होता तो कुछ लोगों के लिए इजी होता, लेकिन इट्स ओके, आप लोग YouTube में देख लेना लेक्चर. ठीक है, तो thank you for today's right now to everyone who have present in the class and listen each and every topic, each and every explanation with proper care and patience. And not only that, आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया है फ्री क्लासेस के लिए भी, तो वो भी हम शेड्यूल करेंगे एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म भी करेंगे. तो राइट नाउ सम ऑफ यू हु आर विलिंग टू ज्वाइन, आप लोगों ने बात ऑलरेडी किया है, तो यस, अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली आज अगर हो पाए तो ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ. टुडे इज संडे ऑल्सो,
एंड कोऑर्डिनेटर विल गाइड यू। आप एक डीएम कर देना इसमें कि आप यूजीसी नेट के लिए एनरोल करना चाहते हो। अगर आप सेट के लिए भी एनरोल करना चाहते हो तो सेम ही कोर्स में आप एनरोल कीजिए, क्योंकि सेम सिलेबस है एंड प्रिपरेशन भी सेम ही होता है। फॉर एंड डब्ल्यू बी सेट का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ही रैदर ज्यादा मतलब लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड रैदर इजी, ठीक है ना। तो अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन ले रहे हो तो सेट तो आपका एक बार में ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो thank you for to each and everyone, and let us know who are willing to join through this number, like by DM. You can just DM your name and along with in which course you are willing to join. Then we will definitely contact with you and make you understand the process of enrollment, and एक ही दिन में आपका enrollment हो ही जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को कुछ भी और क्वेरी, मतलब कोई भी टॉपिक रिलेटेड, ये तो होता ही है कि देयर आर फ्री प्लेटफॉर्म ऑल्सो, आप ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ भी फ्री में भी आपको जानना होगा, गाइडेंस चाहिए होगा, तो कोऑर्डिनेटर को पूछिए, एंड डेफिनेटली इन द लाइव सेशन आई एम ऑल्सो हियर टू अप्रोच टू एक्सप्लेन योर क्वेरीज। तो यस, ओके रिया, आप एक काम कीजिए, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। हाँ डियर, त्रिशानी बैनर्जी, ओके डियर। आप भी, हाँ हाँ हाँ, ये अलग दो लिंक दिया गया था। नहीं डियर, आज का क्लास 8 PM होने वाला था, लेकिन 11 PM में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ओके। वहां भाग दो तो